الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم جس فتنے کے دور میں جی رہے ہیں اس دور میں اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑا انسان فرشتہ ہے یا شیطان۔ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دل میں خوف خدا باقی ہو اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو، ورنہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جس کو جہاں جیسے بھی موقع ملتا ہے وہ اپنا منہ کالا کرنے سے باز نہیں رہتا۔ اور پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک ایسا شرمناک واقعہ ہے جو کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے شہر کراچی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک ڈاکٹر نے 40 سالہ شادی شدہ عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ ڈاکٹر نے کس طرح اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور یہ لڑکی کیسے اس ڈاکٹر کے چنگل میں پھنسی، سب کچھ تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جنہیں ہم مسیحا سمجھتے ہیں انہی مسیحاؤں میں کچھ ایسے درندے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں، جو نہ صرف اس پیشے کو بدنام کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ سو دوستو، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات دن بدن زور پکڑتے جا رہے ہیں، اور اس میں جتنا قصور ان جعلی پیروں، فقیروں اور جعلی ڈاکٹروں کا ہے اتنا ہی قصور ہماری عورتوں کا بھی ہے، کیونکہ جب تک عورتیں بازاروں، گلیوں اور شاپنگ مالز میں اس طرح سے ننگے سر گھومتی پھریں گی اس وقت تک یہ بھیڑیے ان کے جسموں کو نوچتے رہیں گے اور یہ ہراسمنٹ کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں اس واقعے کے بارے میں جو کہیں اور نہیں بلکہ پڑوسی ملک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیش آیا ہے، جہاں پر 40 سالہ عورت کے ساتھ ایک ڈاکٹر نے گھناؤنی حرکت کی اور اسے ایسے طریقے سے اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا کہ جاننے کے بعد آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، شازیہ نامی ایک 40 سالہ شادی شدہ عورت ہے۔ اس کا شوہر ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ایک ہفتہ اس کے دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور ایک ہفتہ وہ رات کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ شازیہ کے 3 بچے تھے، وہ تینوں ہی آپریشن سے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اکثر اس کی کمر میں درد رہتا تھا۔ شازیہ نے 1-2 مرتبہ اپنی اس تکلیف کے بارے میں اپنے شوہر سے ڈسکس کیا، لیکن اس کا شوہر اپنی بزیات، اپنی مصروفیات کی وجہ سے اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکا۔ لیکن اچانک شازیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کا شوہر وہاں پر موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ فیکٹری میں اپنے کام پر تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے اور گھر میں ایسا کوئی اور شخص بھی نہیں تھا جسے وہ ساتھ لے کر جا سکتی، لیکن درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شازیہ برداشت نہ کر سکی اور اسے مجبوراً اکیلے ہی ہاسپٹل کے لیے نکلنا پڑا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے اپنا نمبر لکھوایا اور وہ ویٹنگ ہال میں انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا نمبر آ گیا اور وہ ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ بدقسمتی سے ڈاکٹر کے کمرے میں اس وقت کوئی نرس بھی موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر شازیہ نے بتایا کہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد میری کمر میں اکثر درد رہتا ہے، میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی۔ اگر میں گھر کا کوئی تھوڑا زیادہ کام کر لیتی ہوں تو میری کمر میں تکلیف ہوتی ہے اور اس حد تک ہوتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور پیارے دوستو، شاید آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہو کہ جن عورتوں کو آپریشن کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی کمر کے اکثر درد ہوتا رہتا ہے، اور یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آج کل ہر دوسری اور تیسری عورت کو بچہ آپریشن کے ذریعے سے ہی
पैदा होता है और इस ऑपरेशन के लिए रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है और अक्सर औकात यही इंजेक्शन हमेशा के लिए दर्ददेह बन जाता है। तो दोस्तों, शाज़िया ने कहा कि दिन भर के कामकाज की वजह से सारी रात मेरी तकलीफ में गुजरती है और ये तकलीफ इस हद तक बढ़ जाती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। डॉक्टर ने शाज़िया की ये बात सुनकर उसे अपने पास पड़े बेड पर लेटने के लिए कहा। जब शाज़िया बेड पर लेट गई तो डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उसके कमर से कपड़ा हटाया और उसकी कमर को अपने हाथों से दबाने लगा। शाज़िया यही समझती रही कि डॉक्टर उसे मुआयने के लिए हाथ लगा रहा है, लेकिन शक्ल से शरीफ नजर आने वाले उस डॉक्टर के अंदर का जानवर और दरिंदा जाग चुका था और वो शाज़िया की कमर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि इसके लिए आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। दर्द से कराहती हुई शाज़िया ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर ने अगले ही लम्हे शाज़िया को आधी बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिसने फौरी तौर पर असर किया, जिसने शाज़िया की आंखों के सामने फौरी तौर पर अंधेरा करना शुरू कर दिया। जब इस भेड़िए नुमा डॉक्टर को इस बात का पता लग गया, इल्म हो गया कि वो अपने होशो हवास मुकम्मल तौर पर खो बैठी है, तो वो उसे अपनी जिनसी हवस का निशाना बना लेगा। शाज़िया चूंकि मुकम्मल तौर पर बेहोश थी और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसका शोहर खड़ा था। होश आते ही शाज़िया ने अपने शोहर का हाथ पकड़ा। उसका शोहर कहता है कि शाज़िया, फिक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें कोई दिमागी दौरा पड़ा था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। शाज़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपने शोहर को कुछ न बता सकी। जब उसकी तबीयत जरा संभल गई तो वो उसे अपने घर ले आया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेश आया और दोस्तों आपको बताते चले कि यह वाकया 2019 में पेश आया था। शाज़िया ने आखिर 1 साल तक तो खामोशी इख्तियार किए रखी और इस वाकये के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन जब औरतों के मामले को बहुत ज़्यादा उजागर किया गया तो शाज़िया ने भी हिम्मत बांधते हुए इस वाकये के बारे में मीडिया के सामने पूरी दुनिया को बता दिया। और प्यारे दोस्तों, सबसे अहम बात यहाँ पर हमारा मकसद डॉक्टर की तज़हीक बिल्कुल भी नहीं, उनको तनकीद का निशाना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी शोबे या किसी भी शख्स की तज़हीक हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं, लेकिन आप तमाम लोग भी हमारी इस बात से तो ज़रूर इत्तफाक करेंगे कि अच्छे या बुरे लोग तो हर शोबे में होते हैं। हमारा मकसद उन गलत लोगों को बेनकाब करना है जो कि लोगों की इज्जतों से खेलते हैं और जो कि अपने पेशे के साथ धोखा करते हैं, जैसा कि इस डॉक्टर ने किया। डॉक्टर जिसे हम इंसानी मसीहा गर्दानते हैं, जो कि लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन वो इस किस्म की घिनौनी हरकतों में भी मुलव्विस हो सकते हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पर ये कहता चलूँ कि डॉक्टर वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर इंसानियत की खिदमत करते हैं, दिन रात अस्पतालों में वक्त देते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी भी अदा करते हैं और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ये लोग न अपनी नींद को देखते हैं न अपने घर वालों को देखते हैं। तमाम वक्त ये इंसानी खिदमत में लगे होते हैं। इन लोगों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना या उनकी तज़हीक हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं। हमारा मकसद उन भेड़िया नुमा इंसानों, उन दरिंदों के चेहरों को बेनकाब करना है कि जो पेशा इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं शोबों में ये घटिया लोग भी होते हैं जिसकी वजह से उनकी बदनामी होती है। अब जिस तरह से दोस्तों ये ग्लोबल पेंडेमिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, ये दिन रात मेहनत करते थे, अपनी जान को हथेली पे लिए लोगों की खिदमत करते रहे और उसी इंसानियत की खिदमत में बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा चुके थे। गुजरते साल के दौरान जिस तरह से इन डॉक्टर हजरात ने उन्होंने अपनी इंसानियत की खिदमत की और इस ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई और बदएहतियाती की वजह से अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, वहां पर ये लोग इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार तमाम वक्त लोगों की खिदमत करते रहे, अपनी जान जोखों में डालकर लंबी लंबी ड्यूटी अदा करते रहे बगैर किसी वक्फे के। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए
तो डॉक्टर के रूप में इस तरह इंसान नुमा भेड़िए और दरिंदे भी मौजूद हैं जो कि इस देश की माओ बहनों और बेटियों की इज्जतों को चेकअप के बहाने से, इलाज मुआवजे के बहाने से तार तार करते हैं। उनके चेहरों को बेनकाब करना है। प्यारे दोस्तों, मेरी यहाँ पर तमाम औरतों से गुजारिश है कि इस वतन की बेटियों से गुजारिश है कि हत्तल इम्कान कोशिश करें कि कभी भी बाजार, शॉपिंग मॉल इस तरह से अकेले न जाएं, बेपर्दगी भी न रहें, और अगर कभी किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो कोशिश करें कि लेडी डॉक्टर के पास जाएं, और अगर कोई इंतहाई मजबूरी की सूरत में आपको किसी मेल डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो कोशिश करें कि अपने साथ किसी महरम को लेकर जाएं, बाप को, भाई को, बेटे को, या फिर किसी और को भी ले जाया जा सकता है, जैसा कि चचा वगैरह, मामू वगैरह। लेकिन अगर मजबूरी है, इनमें से कोई भी मौजूद नहीं और आपको अकेले ही जाना पड़ता है तो कोशिश करें कि अपने घर की किसी बूढ़ी औरत को ही साथ ले जाएं, और अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं तो किसी हमसाए को भी साथ ले जाया जा सकता है। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आपके साथ कोई हादसा ना हो सके, इससे पहले अपने आप को इस हद तक तैयार रखें। और दोस्तों, यहाँ पर हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, अपना एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि यहाँ पर डॉक्टर गलत है या हम लोग गलत हैं। अगर उस औरत के साथ कोई शख्स और मौजूद होता तो यकीनन ये डॉक्टर ऐसी हरकत कभी ना कर सकता। जब कोई गैर महरम मर्द और औरत साथ होते हैं तो तीसरा उनके दरमियान में शैतान होता है। इसलिए कभी भी इस तरह की गलती न कीजिए, क्योंकि ऐसी गलती न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे खानदान की तबाही का सबब बन सकती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।